गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज लेक्चर. अब जो भी आता जाएगा उसको ऐड ऑन करते रहेंगे बाद में. नाउ यू ऑल नो वी डन विद द टू सेक्शंस, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. Now the next topics that we are going to be discussed in today's lecture is a part of the section C. In section C, the main heading is data link layer design issues. वट इट मीन्स, इसमें जो भी दिया होगा वो डाटा लिंक लेयर के अकॉर्डिंगली दिया होगा. डिजाइन इश्यूज का मतलब है व्हाट आर द फंक्शनैलिटीज ऑफ डेटा लिंक लेयर. तो आउट ऑफ दीज द फंक्शनैलिटीज ऑफ डाटा लिंक लेयर आर दैट आर द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस इज एरर कंट्रोल, फ्रेमिंग, फ्लो कंट्रोल एंड द डाटा लिंक लेयर इन द इंटरनेट. और उसके दो प्रोटोकॉल्स. द फर्स्ट प्रोटोकॉल इज SLIP स्लिप प्रोटोकॉल एंड द सेकंड प्रोटोकॉल इज PPP प्रोटोकॉल. ये है. उसके बाद नेक्स्ट है द टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग. दिस इज ऑल अबाउट द सेक्शन सी. और हम लोग मल्टीप्लेक्सिंग ऑलरेडी कर चुके हैं. वी ऑल नो मल्टीप्लेक्सिंग हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. सो टुडे वी स्टार्ट विद दिस लेक्चर विद एरर कंट्रोल. और अक्षय, just raise your hand if I am audible to you. Okay, that's good. अक्षय और तुम में से किसी को भी if anyone having any issues to just raise your hand. तो उस टाइम पे मैं तुम्हें अनम्यूट कर दूंगा. Then we discuss that query. और अगर कोई भी वॉइस प्रॉब्लम आएगी या कुछ भी होगा तो you can raise your hand. Clear? Okay, let's start with the first part. Now I'm going to मीनाक्षी. ओके, मीनाक्षी भी कोई स्क्रीन शेयर की नहीं है मैंने अभी. अभी जस्ट डिस्कशन चल रही थी. नाउ आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन. क्लियर? ओके, आई थिंक द स्क्रीन इज विजिबल टू यू. Let's start with the section C. The main topic of the section C is data link layer. In the OSI model, the data link layer is the fourth layer from the top and the second layer from the bottom. We all know, हमने OSI model discuss किया हुआ है. और layers की position, we all know what is the position of the layers. The communication channel that connects the adjacent nodes is known as the link. And in order to move the datagram from source to destination, the datagram must be moved across an individual link. तो what it means कहता है किसी भी communication channel में जब भी हम लोग दो adjacent sides को, दो consecutive या साथ वाली right और left वाली nodes को आपस में connect करते हैं, we required a link for that. And in order to move the datagram means the packets. Whenever we send anything, हम लोग पहले discuss कर चुके हैं, whenever we send anything from one place to the other place, data should be sent in the form of packets or datagrams. तो कहता in order to move the datagrams from source to destination, the datagram must be moved or cross an individual link. For example, suppose A से तुमने data send किया D को, तो क्या होगा? In between the path, the B is there and X is there. तो what it means, first the data is moved from A to B, ऐसा ही होता है, then B to X, then X to D. तो what it means, they are the links. A link that is established between the A to D, another link that is established between the D to X, and another link that is established between the X to D. मतलब जितनी भी नोड्स को क्रॉस करके हमारे वाला डेटा रिसीविंग एंड पे पहुंचेगा, दे आर द लिंक्स. ये पहले बढ़ चुके हैं हम लोग वैसे. क्लियर? द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेटा लिंक लेयर इज टू ट्रांसफर द डेटाग्राम अक्रॉस एन इंडिविजुअल लिंक. द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है इस लेयर की, कि जितने भी डेटाग्राम्स हैं, पैकेट्स हैं, उनको एक लिंक से दूसरे लिंक पे मूव करवाना. क्लियर? The data link layer protocol defines the format of the packet exchange across the node as well as the actions such as. कहता data link layer protocol क्या करते हैं? First, it defines the format of the packet, and normally the format of packet includes source address, destination address, protocols and routing algorithms. ये normal हो गया. जो normal किसी भी पैकेट का जो
फॉर्मेट होता है उसमें ये चीजें होती हैं. Clear? As the actions such as, and what are the different actions that are performed on that datagrams? The first is error detection. Error detection means to find out the error if any error is reside in our data. If any error is reside in our data, to find out that error. Error means we all know. Suppose I send you the data. The data consists of 1, 2, 3. I send you the data. You receive the data. You also receive the 3 digits. I send the 3 digits 1, 2, 3. You receives the 3 digits, but the digits are 1, 2 and 4. तो what it means? मैंने क्या सेंड किया था 1, 2 और 3. तुम्हें क्या मिला 1, 2 और 4. मीन्स सम एरर इज देयर. डेटा जो है वो रिप्लेस हो गया. तो इस चीज को फाइंड आउट करना, दिस इज कॉल्ड एरर डिटेक्शन. टू फाइंड आउट द एरर्स इन अवर डेटा. Clear? Second, retransmission. Retransmission means whenever a error is find over there, then we have to retransmit the data. Because जो डेटा मैंने तुम्हें सेंड किया वो तुम लोगों को पहुंचा ही नहीं, तुम्हें कोई और डेटा पहुंच गया, तो उसको रीट्रांसमिट करना पड़ेगा मेरे को. रीट्रांसमिशन करूंगा कि दोबारा सेंड करूंगा, फिर देखेंगे तुम्हारे पास एक्चुअल डेटा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है. क्लियर? नेक्स्ट, फ्लो कंट्रोल. फ्लो कंट्रोल मीन्स टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा. ये भी हमने अपनी फिजिकल क्लासेस में डिस्कस किया था. फ्लो कंट्रोल मीन्स जिस फ्लो से सेंडर डेटा सेंड कर रहा है उसी फ्लो से रिसीवर भी डेटा रिसीव कर रहा हो. अगर ऐसा नहीं होगा तो नंबर ऑफ पैकेट्स जो रिसीवर साइड पे रिसीव नहीं होंगे, इन बिटवीन द पाथ रहेंगे और जो करप्ट हो जाएंगे. क्लियर? तो डेटा फ्लो को कंट्रोल करना इज द मेजर पॉइंट, फ्लो कंट्रोल. क्लियर? एंड द लास्ट वन इज random access. Random access means randomly we have a access on a number of packets or on a number of datagrams. कौन से datagrams? जो सेंडर के पास है एज वेल एज जो रिसीवर के पास है. क्लियर? ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं डेटा लिंक लेयर की, जो आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे. नेक्स्ट, द डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल्स आर, the number of protocols are present in the data link layer and they are the Ethernet, token ring, FDDI and PPP, that is point to point. और हमारे सिलेबस में PPP है और SLIP है, जो दो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे. but there are the number of protocols that are present in the data link layer. Clear? Next, an important characteristics of a data link layer is that datagram can be handled by the different link layer protocols on different links in a path. What it means? Starting में हमने पढ़ा the number of links are there whenever we sends the data. और डेटा लिंक लेयर क्या करती है? एक लिंक से दूसरे लिंक पे डेटा को कन्वर्ट करती है. और जब भी डेटा कन्वर्ट हो रहा है फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड, अ नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स आते हैं. हमेशा प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं जो कन्वर्जन हो रही होती है उस कन्वर्जन को हैंडल करना, मेंटेन करना और एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए वी रिक्वायर्ड प्रोटोकॉल्स. तो कहता इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डेटा लिंक लेयर का? कि नंबर ऑफ डिफरेंट लिंक्स पे नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोटोकॉल्स जो होंगे, जो उस डेटा को गवर्न कर रहे होंगे. किसको? उस कम्युनिकेशन को गवर्न कर रहे होंगे फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड. क्लियर? फॉर एग्जांपल, द डेटाग्राम इज हैंडल्ड बाय द ईथरनेट ऑन द फर्स्ट लिंक, पीपीपी ऑन द सेकंड लिंक. व्हाट इट मींस? पहले लिंक पे जो डेटाग्राम को हैंडल कर रहा होगा एंड द नेम ऑफ द प्रोटोकॉल इज ईथरनेट. whenever a link 1 is completed, now the data is moved from the link 1 to the link 2. अब सेकंड लिंक पे जब डेटा मूव कर रहा होगा तो उसको कौन सा प्रोटोकॉल हैंडल कर रहा होगा? पीपीपी. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द रफ आइडिया अबाउट द डेटा लिंक लेयर. क्लियर? एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? अगर ये चीज क्लियर होगी देन इट्स वेरी इजी कि अगले वाली स्लाइड्स को रीड आउट करना. इफ एनी क्वेरीज देयर जस्ट रेज योर हैंड. इफ एनी क्वेरीज देयर, what are the different functionalities, how it works और क्या क्या करते क्या डेटा लिंक लेयर में. ओके, डन, दैट्स गुड. नाउ दे आर फ्रेमिंग एंड लिंक असेस. अब जो जितने भी काम्स हैं उनको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है. फ्रेमिंग वी ऑल नो, हमने पढ़ा था. whenever a data is moved from one end to the other end, first it moves in the form of bits, then the combination of bits becomes a frame, then the frame becomes
combination of frame becomes a packet. इसी फॉर्म में डेटा सेंड होता है ना. Data link layer, okay, let's start with the framing. Data link layer protocols encapsulate each network frame within a link layer frame before the transmission across the link. A frame consists of a data field in which a network layer datagram is inserted and a number of data fields. Along with that frame, a number of data fields are also encapsulated into the particular frame. It specifies the structure of the frame, जो structure बताएगी frame का कि frame में क्या क्या चीजें consist है, as well as a channel access protocol, और एक channel access protocol होगा by which a frame is to be transmitted over the link, जिसके थ्रू हम लोग उस फ्रेम को लिंक में ट्रांसलेट करेंगे, लिंक में सेंड करेंगे, एंड दैट इज नोन एज चैनल असेस प्रोटोकॉल. जो चैनल का मतलब हो गया लिंक, नोड और ट्रांसमिशन मीडिया, जो उसको पहले असेस करेगा, असेस करता है, अगर वो एम्प्टी होता है तो वो उस डेटाग्राम को वहां पे सेंड कर देगा जो फ्रेम्स हमने बनाए होंगे. क्लियर. सेकंड, रिलायबल डिलीवरी. डेटा लिंक लेयर प्रोवाइड्स अ data link layer provides a reliable delivery services, that is transmit the network datagram without an error. reliable का मतलब वही हो गया पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब हो गया जिस फॉर्म में डेटा सेंड किया उसी फॉर्म में डेटा जाके डेटा रिसीव हो गया. A reliable delivery service is accomplished with transmission and acknowledgement. It is accomplished with the transmission जो डेटा सेंड करेंगे and acknowledgements, acknowledgement services there. A data link layer mainly provides the reliable delivery service over the link, as they have a high error rates and they can be corrected locally. Link at which an error occurs rather than forcing to retransmit the data. तो what it means, कहता डेटा लिंक लेयर में मेन रिलायबल सर्विस क्यों प्रोवाइड करता है, बिकॉज हाई रिस्क होता है वहां पे एरर ऐड करने का, एरर हमारे डेटा में आने का. अभी प्रीवियस स्लाइड्स में हम लोगों ने पढ़ा जो इसकी एक एडवांटेज है या इसकी एक करेक्टरिस्टिक्स है वो है इट कैन डिटेक्ट द एरर्स. अगर कोई एरर आ जाएगा तो इट कैन इजीली डिटेक्ट और लोकली हम लोग उस एरर को रिमूव कर देते हैं. वी हैव द नंबर ऑफ फंक्शंस ओवर देयर हाउ टू रिमूव द एरर्स. क्लियर. तो दिस इज ऑल अबाउट द रिलायबल डिलीवरी. द थर्ड, द फ्लो कंट्रोल, वही जो पुराना हम लोगों ने पढ़ा. अ रिसीविंग नोड कैन रिसीव द फ्रेम्स एट अ फास्टर रेट देन द इट कैन प्रोसेस द फ्रेम. Without flow control, the receiver's buffer can overflow and frames can get lost. वही जो तुम्हें बताया था कि जिस स्पीड से मैं फ्रेम्स तुम लोगों को सेंड कर रहा हूँ, यू आर नॉट एबल टू रिसीव द फ्रेम्स ऑन दैट स्पीड. सपोज मैं 1 सेकंड में 10 फ्रेम सेंड कर रहा हूँ, तुम लोग 1 सेकंड में 8 फ्रेम रिसीव कर रहे हो. तो 10 सेकंड के बाद मैंने 100 फ्रेम सेंड कर दिए, तुम लोगों ने 80 फ्रेम रिसीव किए, तो 20 फ्रेम्स कहाँ पे होंगे, वो लॉस्ट हो जाएंगे. क्लियर. तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए वी हैव अ मैकेनिज्म्स, वी हैव सम मेथड्स to control the flow. Clear. This is flow control. Next, the error detection. Errors can be introduced by signals attenuation and noise. Data link layer protocol provides a mechanism to detect one or more errors. This is achieved by adding error detection bits in the frame and then receiving nodes can perform an error check. कहता है एरर डिटेक्शन का मतलब है जब भी हम लोग डेटा सेंड करते हैं ड्यू टू सम आउटर प्रॉब्लम्स द बिट्स कैन बी चेंज. ये सबको पता है डेटा जो सेंड होता है वो बिट्स की फॉर्म में होता है, एंड बिट्स का मतलब है 0 1 की फॉर्म में. whenever 0 replaces with 1 और 1 replaces with 0, ऑटोमेटिकली द वैल्यू चेंज. जो वैल्यू चेंज हो गई तो एरर डिटेक्शन हो गई वहां पे, मींस एरर ऐड हो गया तुम्हारे वाले डेटा में. क्लियर. दिस इज कॉल्ड द एरर डिटेक्शन. टू फाइंड आउट द एरर्स वी हैव द डिफरेंट मेथड्स टू फाइंड आउट द एरर्स. क्लियर. Once you find the error, then the next step is to correct that error, and this is the next point. The next point is error correction. Error correction is similar to the error detection, except that receiving node not only detect the errors but also determine where the errors have occurred in the frame. Actually, they find out the exact position where the error is there and trying to remove that error. This is called the error correction. Clear. Okay. Any query यहाँ तक? Any query or any issue? Okay, that's great. Let's move further. Now we start with the first topic, that is the error detection. वैसे जो error detection और correction था वो हमारे सिलेबस का पार्ट यही था कि errors होते क्या हैं
उनको कैसे डिटेक्ट करते हैं और करेक्ट कर देते हैं बाद में, बट वी हैव द डिफरेंट मैकेनिज्म्स। तो वो मैकेनिज्म्स भी मैंने ऐड कर दिए, दो स्लाइड्स उसकी ऐड करती हैं बीच में, ताकि हमको लग जाए पता कि कौन कौन से मेथड है और कैसे वर्क करते हैं। क्लियर? लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, that is called the error detection. When data is transmitted from one device to the another device, the system does not guarantee whether the data received by the device is identical to the data transmitted by the another device. An error is a situation when the message received at the receiver end is not identical to the message transmitted. व्हाट इट मीन्स, कहता है एरर डिटेक्शन है क्या कि जो कॉपी मैंने सेंड किया, व्हाट इट मीन्स जो डेटा मैंने सेंड किया आइडेंटिकल सेम कॉपी इज रिसीव्ड बाय योर साइड, देन इट इज करेक्ट. इफ सम एरर्स आर देयर, सो द कॉपी इज नॉट आइडेंटिकल. आइडेंटिकल मीन्स सेम नहीं होगा, जो मैंने सेंड किया वो तुम लोग सेम रिसीव नहीं कर रहे, तो व्हाट इट मीन्स सम टाइप ऑफ एरर इज प्रेजेंट इन दैट डेटा. सपोज जैसे वही प्रीवियस एग्जांपल मैंने तुम्हें सेंड किया 1 2 3, तीन डिजिट सेंड किए, यू रिसीव्स द थ्री डिजिट्स बट द डिजिट्स वैल्यूज आर 1 2 एंड 4. मैंने क्या सेंड किया था 1 2 3. तो व्हाट इट मींस some error is present in that data. The copies are not identical because at my side, sender side, the copy consists of 1 2 3, but at the receiver side the copy consists of 1 2 4. This is called some errors are there. Now we have to find out the error. Clear? Next, टाइप्स ऑफ एरर. अब इसको बोलते हैं कि एरर आ जाना, या हम लोग उसको एरर को फाइंड आउट करते हैं. नेक्स्ट कहता कितने तरह के एरर्स होते हैं हमारे डेटा में. एरर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू द टू कैटेगरीज. दो एरर्स होते हैं, सिंगल बिट एरर और द बर्स्ट एरर. एज द नेम इम्प्लाइज, सिंगल बिट एरर, the only one bit of a given data unit is changed from 1 to 0 or from 0 to 1. इसको ध्यान से समझना. We all know whenever we send some data, the data can be moved in the form of bits, and the bits value is either 0 or 1. Clear? तो single bit error का मतलब हुआ either 1 converted to the 0 और 0 converted to the 1, because bits होती दो हैं, 0 और 1, या 1 0 बन गई है या 0 1 बन गई है, तो वो error हो गया. Clear? Single bit error does not appear more likely in a serial data transmission. Serial transmission means one belongs to the other in the form of serial 1 2 3 4 5, like this. For example, sender sends the data at 10 mbps, megabits per second. This means that the bit lasts only for 1 second, and for a single bit error to occur, a noise must be more than 1 second. What it means, जितनी भी नंबर ऑफ बिट्स, एग्जांपल का मतलब मैं तुम्हें वैसे समझा देता हूँ. कहता सपोज 10 mbps की स्पीड से हम लोग डेटा सेंड कर रहे हैं, अगर एक सिंगल एरर आ रहा है, तो सिंगल एरर, अगर सिंगल बिट एरर अक्कड़ होता है, तो नॉइस भी क्या होगा. नॉइस का मतलब है, तुम्हें पहले बताया, आउटर प्रॉब्लम्स के कारण एरर आता है. आउटर नॉइस ज़्यादा होता है तो वो मिक्स हो जाता है हमारे डेटा के साथ. डेटा के साथ जब मिक्स होता है तो बिट्स चेंज हो जाती हैं. जब सिंगल बिट एरर होगी तो ऑटोमेटिकली नॉइस मस्ट बी मोर देन 1 बिट. ज़्यादा नॉइस था तभी नॉइस हमारे वाले डाटा से ऐड हुआ, और ऐड होने के बाद उस बिट को चेंज कर दिया. प्रीवियस पहले सेक्शन पे जाओ, तुमने पढ़ा था एनालॉग या डिजिटल की फॉर्म में डेटा सेंड करते हैं, सिग्नल रिसीव करते हैं, ऐसा ही है ना. ट्रांसमिशन मीडिया पढ़ा था, ट्रांसमिशन मीडिया में हम लोग डेटा सेंड करते थे, वो उस या एनालॉग या डिजिटल उसकी सिग्नल्स की फॉर्म में डेटा ट्रांसफर होता था. अब जब वायर्ड फॉर्म पे, जैसे तुमने वो अनशील्डेड और शील्डेड पढ़ी थी, उसमें पढ़ा था ना, शील्डेड ज़्यादा सिक्योर होती है बिकॉज एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है. अब वो कवरिंग क्या होती थी कि बाहर वाला नॉइस अगर ज़्यादा हुआ तो अनशील्डेड को वो इफेक्ट कर जाएगा. जब अनशील्डेड को इफेक्ट कर जाएगा तो 1 0 में चेंज हो जाएगा, 0 1 में चेंज हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड द एरर. क्लियर? अगर याद है तुम्हें सेक्शन 1 वाला पार्ट. नेक्स्ट, सिंगल बिट एरर मेनली अकर्स इन अ पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन. कहता है पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन में आता है, एंड वी नो व्हाट इज पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन. जब व्हेन वी सेंड मोर देन 1 एंटिटीज एट द सेम टाइम, जैसे 5 यूजर्स ने अपना डाटा एक ही टाइम पे सेंड कर दिया, दिस इज कॉल्ड द पैरेलल, मोर देन 1. फॉर एग्जांपल, if 8 wires are used to send the 8 bits of a byte, if one of the wire is noisy, कहता then single bit is corrupted per byte. कहता अब 8 वायर्स हैं जिनके थ्रू हम लोग डेटा सेंड कर रहे हैं, अगर एक वायर जो नॉइजी है, नॉइजी मीन्स आउटर नॉइज ज्यादा है,
तो वो सभी को इफेक्ट कर जाएगी और हर एक रिमेनिंग 7 जो वायर्स हैं उनकी हर एक बिट जो है वो नॉइज से इफेक्ट कर जाएगी। जब नॉइज से इफेक्ट कर जाएगी तो वो बिट अपनी वैल्यू चेंज कर जाएगी। अगर 1 होगी तो 0 हो जाएगी, अगर 0 थी तो 1 हो जाएगी। क्लियर? ओके, this is all about the single bit error, and the diagram is now the diagram you can easily understand the single bit error. At the sender side 000000010, sender side जहाँ पे send लिखा, we want to send this data, but at the receiver side what it can be received 00001010. what it means, अगर right side से देखें तो fourth bit is converted, जहाँ पे arrow बना, the fourth bit is converted from 0 to 1. जो सेंड किया था वो रिसीवर के साथ रिसीव नहीं हुआ, तो व्हाट इट मींस, इन दिस केस द फोर्थ बिट that is present at the sender's data, the value of that bit is 0, but whenever a data is received by the receiver the value of that bit is 1. So this is single bit error. Clear? Now the second is the the second is burst error. The 2 or more bits are changed from 0 to 1 or from 1 to 0 is known as burst error. Whenever एक से ज़्यादा बिट जब चेंज हो जाएगी तो उसको हम लोग burst error बोलेंगे. सपोज मैंने 100 बिट्स तुम्हें सेंड की, डेटा 100 बिट्स में तुम्हें सेंड हुआ, अगर उसमें सिंगल बिट चेंज हुई थी यू कैन से इट इज़ अ सिंगल बिट एरर. अगर उसमें 4 बिट्स हो गई हैं, 10 हो गई हैं, 20 हो गई हैं, 90 हो गई हैं, 99 हो गई हैं, दे ऑल आर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ बर्स्ट एरर. एक से ज्यादा बिट जब हो जाएगी तो हम लोग उसको बर्स्ट एरर बोलेंगे. क्लियर? द बर्स्ट एरर इज डिटरमाइंड फ्रॉम द फर्स्ट करप्टेड बिट टू द लास्ट करप्टेड बिट ऑटोमेटिकली. सपोज ये लाइन समझा देता हूँ, मेन है. सपोज 100 बिट्स मैंने तुम्हें सेंड की और जो पहली बिट चेंज हुई वो थी 17th पोजीशन पे. कहता फर्स्ट बिट से लेके लास्ट बिट तक हम लोग उसको चेक करेंगे. 17th बिट पे जो 17th पोजीशन पे जो बिट थी वो कन्वर्ट हो गई और लास्ट कौन सी करप्ट हुई 97th पोजीशन पे. तो व्हाट इट मींस, नाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट द वैल्यूज और वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एरर फ्रॉम 17th बिट टू द 97th बिट, the starting point of that error and the last point of that error. Clear? The duration of noise is burst error is more than the duration of the noise in single bit. Automatically, the errors can comes with the help of noise. Whenever a noise is more, the error is more. Automatically, in the case of burst error, the noise is more as compared to the in the case of the single bit error. थोड़ा noise था तो single bit convert हुआ. Whenever a value of the noise is increases, it can affect on the number of bits. So automatically the number of bits can be affected. So number of bits can be affected. So we can say the burst error is there. Clear? So this is the basic definition of burst error. Now, from example, you can easily know what is the difference between the single bit error and the burst error. Now, in the case of send, we send 0000001000000010. Now at the receiver side, we receives the 000. In the fourth bit, it changes the value from 0 to 1. In the fifth bit, the values changes from 0 to 1. In the eighth bit, the value is converted from 0 to 1. Now, this is called, they are the corrupted bits. This is called the burst error. But what is the length of that error? Length of the burst error means, तुम्हें अभी पहले बताया मैंने, जो पहली बिट इफेक्ट की है वहां से लेके जो लास्ट बिट इफेक्ट की है वो उसकी लेंथ होगी. तो लेंथ इन दिस केस द लेंथ ऑफ द बर्स्ट एरर इज 5, बिकॉज जो पहली बिट इफेक्ट की थी just count start from that and till the last bit that is changed at the receiver side. Clear? By any issue or any problem in single, what is data link layer, what are the designs of data link layer, what is error detection, what is single bit error, what is burst error, कोई भी problem है तो just raise your hand, we can discuss. Anyone? Okay, so it means clear to everyone. That's good. Let's move further.
नाउ नाउ वी हैव द डिफरेंट एरर डिटेक्टिंग टेक्निक्स। जो तुम्हें मैंने बताया था कि एरर डिटेक्टिंग की जो टेक्निक्स हैं वो वैसे सिलेबस में सिर्फ हेडिंग्स ही दिए हुए थे, बट वी कैन ऐड बट मैंने उसमें क्या किया, दो दो स्लाइड्स ऐड कर दी हैं ताकि हम लोगों को लग जाए पता कि हाउ इट वर्क्स। द मोस्ट पॉपुलर एरर डिटेक्टिंग टेक्निक्स आर, वी हैव द 4 टेक्निक्स टू फाइंड आउट द एरर। First, single parity check. Second, two-dimensional parity check. Third, checksum. And fourth, CRC, that is called cyclic redundancy check. Let's start with the first. अब इनको समझना ध्यान से। Single parity check, कहता single parity checking is the simplest mechanisms and inexpensive to detect the errors. And this technique, a redundant bit is also known as a parity bit, which is appended, at the end of the data unit so that the number of ones become even. What it means, हमने जो भी डेटा सेंड करना है उनमें नंबर ऑफ वंस को इवन बनाना है. इफ द नंबर ऑफ वंस आर इवन, ऑलरेडी इवन, देन वी ऐड द जीरो विद अवर डेटा. इफ द नंबर ऑफ वंस आर नॉट इवन, तो सिंपली वी कैन ऐड द वन. तो ऑटोमेटिकली ऑड था नंबर वन का, तो वो इवन हो जाएगा. बट इट मीन्स वी कैन ऐड द रिडंडेंट बिट. समझो पहले, पढ़ने से पहले एक रिडंडेंट बिट ऐड करेंगे. कब ऐड करेंगे भाई, मेरा डाटा है उसमें फाइंड आउट करेंगे द नंबर ऑफ वंस कितने हैं. अगर वो ऑड है तो वन ऐड कर देंगे लास्ट में, वो इवन बन जाएंगे. अगर ऑलरेडी इवन है वंस तो जीरो ऐड कर देंगे. मीन्स द बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू मेक्स द नंबर ऑफ वंस इन अवर डेटा इज इवन. क्लियर? If the number of one's bit is odd, then parity bit is 1 is appended. If the number of one bit is even, then parity bit is 0 is appended at the end of the data unit. वही जो तुम लोगों को अभी समझाया. Clear? At the receiving end, the parity bit is calculated from received data bits and compared with the receiver's parity bit. जो रिसीव करेंगे उसमें हम लोग कंपेयर कर लेंगे कि नंबर ऑफ वंस कितने हैं, और एंड वाला जो वो लगा हुआ है रिडंडेंट बिट लगी हुई, वन लगी हुई है क्या, जीरो लगी हुई है. क्लियर? The technique generates the total number of ones even, so it is known as the even parity checking. Also, the second name of this technique is also called even parity checking. ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता होता है. इधर सिंगल पैरिटी चेक आ जाएगा या इवन पैरिटी चेकिंग आ जाएगा. क्लियर? अब सेंडर साइड, सपोज वी कैन सेंड द डेटा 101101 तो 1 2 3 4 5. अब नंबर ऑफ वंस कितने हैं इसमें, 5. तो 5 इज ऑड, तो ऑटोमेटिकली वी नो वी ऐड द 1 एट द एंड ऑफ द डेटा. जब 1 ऐड कर देंगे, वो लिखा ना कंप्यूट पैरिटी बिट. पैरिटी बिट को कंप्यूट किया, एंड में 1 लगा दिया. अब नंबर ऑफ वंस कितने हो गए, 6, एंड 6 इज इवन. वो ट्रांसमिट किया, वो वहां पे जाके रिसीव होगा, कंप्यूट पैरिटी बिट. इफ द, आगे जाके देखो, इफ द नंबर ऑफ वंस आर इवन, then yes, accept the data. If the number of ones are not even, reject the data. Clear? Clear है सबको? Next, इसी का है अभी, ड्रॉबैक्स ऑफ सिंगल पैरिटी. कहता है सिंगल पैरिटी कुछ ड्रॉबैक्स हैं. इट कैन ओनली डिटेक्ट द सिंगल बिट एरर विच आर वेरी रेयर. अब इसमें क्या किया, तुम लोगों ने एक चीज देखी होगी, नंबर ऑफ वंस को इवन देखा. सपोज करो कोई 1 0 बन गया था और 0 1 बन गया था डेटा में, तो नंबर ऑफ वंस तो इवन ही रहे. 0 1 बन गया था, 1 0 बन गया था, तो नंबर ऑफ वंस तो इवन ही रहे, बट एरर इज देयर. तो ये ड्रॉबैक था उसका कि ये उन एरर्स को डिटेक्ट नहीं कर पाता था. इफ, वही जो भी समझाया मैंने, इफ 2 बिट्स आर इंटरचेंज, देन इट कैन नॉट डिटेक्ट द एरर बिकॉज इट ओनली फोकस ऑन द नंबर ऑफ वंस एंड इट फाइंड द नंबर ऑफ वंस आर इवन. अब इवन का मतलब है सपोज 4 थे 1, अब कोई 1 था वो 0 बन गया था, तो 3 वंस रह गए डेटा में. कोई 0 था जो 1 बन गया, तो फिर 4 हो गए. तो इसने ये देखना है इवन है, तो इसने ओके कर देना है. अब भाई अगर बिट्स ही चेंज हो गई हैं तो ये ड्रॉबैक था इसका. इसलिए इसको कम करने के लिए वी हैव अनदर मेथड, एंड दैट मेथड इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक. 1 डायमेंशनल में कोई प्रॉब्लम, एनी इश्यू टू एनीवन, जस्ट मैसेज और रेज योर हैंड. Okay, the 2-dimensional parity check. Performance can be improved by using the 2-dimensional parity check. कहता वो सिंगल डिमेंशनल था, सिंगल पैरिटी चेक करते थे, उसमें प्रॉब्लम्स आती थी, नया मेथड बनाया,
और उस मेथड को नाम दे दिया टू डिमेंशनल पैरिटी चेक, which organize the data in the form of table. अब वो टेबल को डेटा फॉर्मेट में बना देता था. पैरिटी चेक बिट्स आर कंप्यूट फॉर ईच रो विच इज इक्विवेलेंट टू द सिंगल पैरिटी चेक. हर रो के लिए कंप्यूट करना जो सिंगल पैरिटी चेक में होता था. अगर इवन है तो इवन कर देना, अगर इवन नहीं है तो ऐड करके इवन कर देना. जस्ट वेट, अमृतपाल कौर, जस्ट वेट फॉर अ मिनट. अमृत, अनम्यूट योरसेल्फ. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. हाँ जी अमृत बोलो. सर जो सिंगल पैरिटी चेक में सर जो आपने इवन और ऑड वाला बताया था सर, क्या आप दोबारा रिपीट कर सकते हो? हाँ सिंपल, ये देखो अभी अनम्यूट ही रहो, सुनो. इसमें सिंगल पैरिटी चेक में उसने क्या करना है, उसने नंबर ऑफ वंस को काउंट करना है. अगर तो नंबर ऑफ वंस इवन ही है तो वो लास्ट में 0 ऐड कर देगा. अगर नंबर ऑफ वंस ऑड है तुम्हारे डाटा में तो वो लास्ट में 1 ऐड कर देगा. ऑड में 1 ऐड करोगे तो इवन बन जाएगा. तो मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? नो क्यों? सर दोबारा रिपीट करना सर, एक मिनट. इवन नंबर कौन से होते हैं? सर इवन में सर 1 2 3. 1 2 3 4. सर हेलो. हाँ जी बोलो. हेलो अमृत आवाज आ रही है? हेलो सर, आपकी कट कट करके आवाज आ रही है. हेलो अक्षय, अनम्यूट योरसेल्फ. हेलो, गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. अक्षय आवाज आ रही है? हाँ जी सर आ रही है. क्लियर आ रही है? यस सर. चलो ठीक है, अनम्यूट कर रहा हूँ. अमृत को उसका आंसर दे दूं पहले. ओके सर. अमृत अनम्यूट योरसेल्फ. हेलो अब आवाज आ रही है अमृत? सर, आपकी कट कट करके आवाज आ रही है. क्लियर आवाज नहीं आ रही? सो नो सर, एक मिनट सर, आई थिंक नेटवर्क. अपना नेटवर्क चेक करो अमृत. सर 1 मिनट. हेलो. हाँ जी अमृत. यस सर. अब आवाज आ रही है? यस अमृत, सर. उसमें क्या बताया था, मैं रिपीट कर रहा हूँ, बाकियों के लिए भी रिपीट कर रहा हूँ. उसने कहा कि सिंगल पैरिटी में वो नंबर ऑफ वंस को इवन करना है. और इवन कौन से होते हैं नंबर? अमृत इवन नंबर कौन से होते हैं? सर 2 4 8. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. क्लियर? यस सर. हाँ. ऑड क्या होते हैं? 1 3 5 7 9 11 13 17. डन. कहता सपोज मैंने जो तुम्हें डेटा सेंड किया, अगर उसमें नंबर ऑफ वंस ऑड हैं तो लास्ट में 1 ऐड कर दो. सपोज मैंने तुम्हें डेटा सेंड किया, उसमें नंबर ऑफ वंस थे 5 इज ऑड नंबर. यस सर. लास्ट में 1 ऐड कर दिया तो कितने 1 हो गए अब डेटा में? 5 + 1 6. यस सर, 6 हो गया. 6 इज अ इवन नंबर. इवन नंबर. यस. अगर कहता अगर ऑलरेडी तुम्हारे डेटा में नंबर ऑफ वंस इवन है, 4 है वंस, तो एंड में 0 ऐड कर दो. सर 0 ऐड कर दो तो सर फिर 4 तो फिर हाँ 4 तो 4 ही रहेंगे. 4 ही रहेगा सर. हाँ तो वो क्या बन गया? इवन ही हो गया सर. तो हमारा ऑब्जेक्टिव इवन करना है. हमारा ऑब्जेक्टिव ही वंस को इवन करना है ना. यस सर. यही तो मैंने स्लाइड में पढ़ाया तुम्हें कि हमने करना क्या, इवन करने हैं. क्लियर? अब ठीक है सर. यस सर. हाँ, जहाँ पे नहीं किसी को क्लियर होगा मेरे को बता देना. बट एक बात है कि प्रॉब्लम तब बताना जब तुमने वो पीपीटी पढ़ी हो, सुनी है तो. क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट द सिंगल. नाउ हम लोग पढ़ रहे थे टू डिमेंशनल. टू डिमेंशनल उसने क्या कहा, कहता वो डेटा को टेबल की फॉर्म में बना लेता है, रो इनटू कॉलम, और जितनी भी रोज हैं उनके लिए पैरिटी चेक कर लेता है. सेम इन द केस ऑफ सिंगल पैरिटी, जैसे हर किसी में चेक करता था ना. नेक्स्ट, in two dimensional parity check, a block of bits is divided into the rows and the redundant row of bit is added to the whole block. अब उसमें क्या था, नंबर ऑफ वंस को चेक करना. नंबर ऑफ वंस इवन है तो 0 ऐड कर देना, ऑड है तो 1 ऐड कर देना. कहता टू डिमेंशनल में क्या करता है, वो डिवाइड कर देता है इनको रोज की फॉर्म में, और रिडंडेंट रो ऑफ बिट्स को ऐड कर देता है कंप्लीट ब्लॉक के साथ. ब्लॉक का मतलब है जो कंप्लीट डेटा हम लोग सेंड करेंगे. एट द रिसीविंग एंड
the parity bits are compared with the parity bits computed from receiving data. received data से compute कर लेते थे parity bits को. अगर 4 parity bits ऐड किए हैं और उन चारों में 1110 है, तो रिसीवर साइड पे जो parity bits है वो भी 1110 होनी चाहिए. दोनों को आपस में कंपेयर कर लेंगे. क्लियर? अब ये डायग्राम देखो. सबसे ऊपर देखो ओरिजिनल डाटा. ओरिजिनल डाटा क्या? 11001110. उसको सबसे पहले लिख दे येलो वाले में 11001110. सेकंड वाले को सेकंड येलो वाली फॉर्म में, थर्ड देन फोर्थ. पहले उसने क्या किया? रो वाइज कंप्यूट किया. अब पहली रो में कितने नंबर ऑफ वंस हैं? 5. 5 इज ऑड वैल्यू, तो सिंपली ऐड द 1. 6 हो गए तो इवन बन गई. सेकंड वाले में देखो नंबर ऑफ वंस कितने थे? 5, तो 1 ऐड कर दिया, 6 हो गए, इवन नंबर बन गया. थर्ड वाले में ऑलरेडी 4 थे, 4 इवन नंबर है, तो क्या ऐड करेंगे? 0 ऐड कर दिया. लास्ट वाले में 3 थे तो 1 ऐड कर दिया. ये हो गई रो पैरिटी. 2 डिमेंशनल में कॉलम पैरिटी भी बनाएगा वो. सेम विद दैट. कॉलम पैरिटी में पहले का एग्जांपल देखो. कॉलम लेके चलो. पहले में क्या है? 1 1 0 0. इनमें कितने वंस हैं? 2 वंस हैं. 2 इज इवन नंबर, ऐड 0. क्लियर? डायग्राम क्लियर हुआ? व्हाट इट मींस, सिंगल वाले में सिर्फ रो पैरिटी चेक होती थी. 2 वाले में रो एंड कॉलम की फॉर्म में डेटा को लिख लेंगे, दोनों की पैरिटी चेक करेंगे. एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पैरिटी इज टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ वंस, एंड वी हैव टू मेक द नंबर ऑफ वंस इवन. इवन है तो भाई 0 ऐड करो, नहीं इवन है तो 1 ऐड करो, इवन हो जाएगा. क्लियर? Okay, that's good. Now still okay, just message is received. Yes sir. Okay, that's good. हाँ, yes मैसेज भी करते हो तो ये मेरे को भी मोटिवेट करता है कि तुम लोगों को समझ आ गया. That's good. Okay, now we have a 2D parity हो गया, but still it has some drawbacks. वो क्या है? If 2 bits in the one data unit are corrupted and 2 bits exactly the same position in another data unit are also corrupted, then 2D parity checker will not able to detect the same problem. Just wait for column parities. Okay, just wait, मैं repeat कर देता हूँ. Minakshi, just wait for a minute. Minakshi, unmute yourself. गुड मॉर्निंग मीनाक्षी. ये देखो, जैसे रो पैरिटी चेक की है हम लोगों ने, तुम अनम्यूट पे ही हो. रो पैरिटी चेक करनी आ गई है? सर. तो सेम कॉलम पैरिटी चेक करनी है. डिफरेंस क्या है उसमें? रो होती है स्ट्रेट, कॉलम डाउनवर्ड्स है. कॉलम पैरिटी चेक करो, पहले की चेक कर लो. पहले कॉलम क्या बन रहा है? ये येलो वाला पार्ट देखो, ये 1 1 0 0. तो नंबर ऑफ वंस कितने हो गए? 2. 2 इवन है, हाँ जी सर. तो क्या ऐड करेंगे? 0. भाई सिंपल है, जैसे रो पैरिटी चेक की है वैसे कॉलम पैरिटी चेक करनी है. ठीक है सर. क्लियर? ओके सर. गुड. नाउ म्यूट योरसेल्फ. ओके. कहता प्रॉब्लम क्या है 2 बिट में, जैसे सिंगल बिट में थी. कहता 2 बिट में 2 बिट्स साइमल्टेनियसली चेंज हो जाएं, वही रिसीविंग साइड पे जाके चेंज हो जाएं, तो ये फिर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा. दिस टेक्निक कैन नॉट बी यूज टू डिटेक्ट द 4 बिट एरर्स. भाई 4 बिट जहां पे एरर होगा वो तो इसको कंप्लीटली नहीं चेंज कर पाएगा, ये सिर्फ 2 बिट्स तक एरर देख पाएगा. 2 बिट से ज्यादा इसको एरर पता ही नहीं लगेगा. क्यों? रो इनटू कॉलम में क्या करेगा? फिर वो 1 1 चेक करेगा. भाई अगर रो इनटू कॉलम में 4 1 0 बन गए, 4 0 1 बन गए, तो डाटा चेंज हो गया. बट ये हमें क्या बताएगा? नहीं जी, योर डाटा इज सेफ, योर डाटा इज हैव द आइडेंटिकल कॉपी, बट एरर्स आर देयर. तो ये 2D पैरिटी था. अब इसमें प्रॉब्लम्स आई, देन वी हैव द न्यू ऑप्शन इज देयर, दैट इज कॉल्ड द चेकसम. थर्ड, okay,
A checksum is an error detection technique based on the concept of redundancy. अब वो आगे जाके क्लियर हो जाएगा. इट दो पार्ट्स होते हैं उसके, चेकसम जनरेटर, चेकसम चेकर. जनरेटर जो उसको जनरेट करेगा, ऐड करेगा डाटा के साथ, सेंड कर देगा. जो रिसीवर साइड पे जाके उसको चेक करेगा वो चेकसम चेकर हो गया. क्लियर? एक सेंटर साइड पे यूज होगा, एक रिसीवर साइड पे. अब होगा क्या? हाउ द वर्क कैन बी डन इन द फॉर्म ऑफ चेकसम. फर्स्ट चेकसम जनरेटर. एक और बात, जस्ट वेट फॉर अ मिनट. लाइट चली गई है, अब स्टिल अगर मैं लॉग आउट हो जाता हूं तो तुम लोग लॉग इन रहोगे. पावर कट इज देयर, तो मैं ऑटोमेटिकली ज्वाइन कर जाऊंगा. क्लियर? अगर यहाँ से मैं लॉग आउट होता हूँ तुम लोग स्टिल ऐसे ही रहोगे. देन वी स्टार्ट विद अवर देन वी कंटिन्यू अवर क्लास. जहां भी एग्जिट होगा वेट करना भी. A checksum is a checksum generator at the sending side. Checksum generator subdivide the data into the equal